Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 15ଟା क्वेश्चन सॉल्व କରିବା from the topic motion of a charged particle inside a magnetic field. So previous lecture रे ଆମେ एई टॉपिक रो जहा सब कांसेप्ट अछि ताकू डिस्कस करथिले एंड ଆମେ को टाइप रो क्वेश्चन को केमती फेस करबा हाउ टू अप्रोच टू द क्वेश्चंस को टाइप रो कांसेप्ट अछि ता विषय डिस्कस करथिले. तो आज आम किसी क्वेश्चंस सॉल्व करिबा some of the selected questions from this topic. So let's begin. The first question कौन देइछि ना a proton and an alpha particle moving with the same velocity enter into a uniform magnetic field acting normal বা perpendicular to the plane of their motion. The ratio of radii of the circular paths described by the proton and alpha particle is dash. So we have four options and we have to choose the correct one. तो से कौन कहला ना we have a proton and we have an alpha particle, both have the same velocity and they enter into a perpendicular uniform magnetic field. So they have the same velocity. The v is the velocity of proton as well as that of the alpha particle, and they enter into the same uniform perpendicular magnetic field. So b hochi same. आमे देखिबा जे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम. तो हम जानिते जे r रो फार्मूला कोन ता होची mv/qb जेहेतु टी वेलोसिटी कहिची तो आमे mv/qb फार्मूला यूज करिबा एंड फॉर प्रोटॉन हम लिखि परिबी rp इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली r अल्फा केते हबो r अल्फा हे जिवो m अल्फा into velocity divided by q alpha into magnetic field. जेहेतु v और b same अच्छी, so I am not writing v p or v alpha. So now let us find the ratio. तो rp divided by r alpha एटा केते आसीबो in place of rp हम लिखि परिबा mp into v divided by qp into b into it is 1 by r alpha अच्छी, so we have to take the reciprocal of this quantity. तो एटा केते हेजिबो q alpha into b divided by m alpha into v. तो एठी v v cancel हेजिबो b b cancel हेजिबो. Now let us see what is the relation between the mass of alpha particle and mass of proton. तो एठी mp divided by qp रहिला and remember that the charge of alpha particle is twice the charge of proton. तो आपको भी लिखि परिबी 2qp. So q alpha will be 2qp and the mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. तो m alpha को लिखि परिबी 4 into mp. तो एठी qp qp cancel हे जिवो mp mp cancel हे जिवो 2 by 4 एटा हे जिवो 1 by 2. So rp by r alpha that will be 1 by 2. So option A will be the correct one. Next question कौन देइछि ना a particle of mass m and charge q moving with a velocity v describes a circular path of radius r when subjected to a uniform transverse magnetic field. So transverse means perpendicular magnetic field of induction b. The work done by the field when the particle completes one full circle is dash. So आर आंसर कोन हबो एटा आंसर हबो 0 हबो काइना जेमति मु प्रीवियस क्लास रे कहितली जे मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन ए चार्ज पार्टिकल बा हम या कहि परिबा जे मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल. सो द वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन को देइछि ना एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन. It encounters a magnetic field in the y direction. Its subsequent motion will be dash. So we have four options. कौन देइछि ना straight line along x direction, ना a circle in the xz plane. Option C कौन देइछि a circle in the yz plane. Option D कौन देइछि a circle in the xy plane. So आमे देखिबा जे इलेक्ट्रॉन टा जो मूव करूची that is along the x direction और मैग्नेटिक फील्ड को पड़े along the y direction. तमने डेफिनेटली वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ए केस रे कोन हबो ना डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ. सो स्ट्रेट लाइन along x डायरेक्शन एटा केबे भी आंसर हबोनी. सो वी हैव अदर थ्री ऑप्शंस लेफ्ट. तो एबे हमकु रे डायग्राम ड्रा करे पड़िबो. तो सपोज एटा होची x एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, this is the positive y axis, it is x, it is y, and this one is the
पॉजिटिव जेड एक्सिस ठीक अछि तो एबे जो क्वेश्चन देछि कोन देछि ना इलेक्ट्रॉन टा मूव करूछि वी हैव एन इलेक्ट्रॉन and the electron is moving along the positive x axis okay तो v को आम लिखि परिबा v वेक्टर केते हबो एटा हबो v i कैप हेजबो एंड एबे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड अछि द मैग्नेटिक फील्ड इज along the y डायरेक्शन तो b वेक्टर को लिखि परिबी b j कैप ओके आउ चार्ज केते चार्ज होची माइनस ऑफ e बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो देखिबा जो फोर्स आसीबो जो मैग्नेटिक फोर्स पड़िबो से मैग्नेटिक फोर्स कुआडे पड़िबो तो एफ मैग्नेटिक फोर्स रो फॉर्मूला कोन ना q इनटू v क्रॉस b तो q जगह रे मु लिखि परिबे एठी माइनस e लिखि देबी सो माइनस e इनटू v केते v होची vi कैप क्रॉस b केते b होची b j कैप तो एटा केते हेजबो ना माइनस e v b i क्रॉस j हबो k कैप ओके ताको हम लिखि परबी e v b इनटू माइनस ऑफ k कैप ठीक अछि तो एथे में कोन लिखले ना जो फोर्स आसीबो द फोर्स विल बी अलोंग द नेगेटिव j डायरेक्शन सो जदि आको मैं पछक ड्रा करबी दिस इज द नेगेटिव j डायरेक्शन ता माने इलेक्ट्रॉन ता एमती एंट्री करिवो वंस इट एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ता ऊपर नेगेटिव z डायरेक्शन रे गोटे फोर्स पड़िवो तो सी कोन हबो से इलेक्ट्रॉन ता से ए एक्स जेड प्लेन रे एमती मूव करिवो ओके द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द एक्स जेड प्लेन सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन that the electron will move in the circular path in the xz plane the yz haboni ki xy plane haboni the answer will be in the xz plane so next question kon dechi now the two ions having masses in the ratio 1:1 tamane semanakor mass same achi and charges in the ratio 1:2 are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field uh, with speeds in the ratio 2:3 so the ratio of radii of circular path along which the two particles move is dash तो हम पाखरे दुटा चार्ज अछि suppose q1 and q2 are the two charges so the ratio of the charges sorry ratio of the masses केतेला 1:1 तो m1 and m2 are the masses so q1 is to q2 एटा केते कहला एटा कहला 1:2 कहला मास रो रेशियो केते कहिची 1:1 कहि दिची एंड सेमानकर जो स्पीड अछि से स्पीड रेशियो केते कहला v1:v2 एटा होचे केते 2:3 एंड कह दिजी एठी ना द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आमे देखिबा जे सेमान जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करिवे तर रेडियस रेशियो केते हबो तो अगेन आमे यूज करबा को फार्मूला ना r होची mv/qb तो r1 हे जिवो m1 v1 डिवाइडेड बाय q1b जेतु मैग्नेटिक फील्ड सेम अछि तो हमें b1 b2 लिखिबानी ओनली b लिखिबा सेमदी r2 केते हबो r2 हे जिवो m2 v2 डिवाइडेड बाय q2 b हे गेला तो r1 बाय r2 ए जो रेशियो बाहर करबा एटा केते हबो m1 v1 डिवाइडेड बाय q1 b इनटू q2 b डिवाइडेड बाय m2 v2 सॉरी b b कैंसिल हे जिवो हमें कोन पाइबा एठी ना m1 बाय m2 then q2 by q1 into v1 by v2 तो m1 by m2 तो ऑलरेडी 1 by 1 कहि देछि q2 by q1 तो q1 by q2 होछि 1 by 2 तो q2 by q1 हे जिवो 2 by 1 आ v1 by v2 एटा अछि 2 by 3 ओके सो केते वन सेटा हे जिवो 4 by 3 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कह देछि ना a charged particle is at rest in the region where magnetic field and electric field are parallel then the particle will move in a dash तो ऑप्शन देछि कोन ना स्ट्रेट लाइन ना सर्कल इलिप्स ना नन ऑफ दिस तो ए क्वेश्चन हम केमती सॉल्व करबा हम गोटे फिगर ड्रा करबा देखो सपोज कोन कह देछि ना गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अछि एंड बोथ आर पैरेलल सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को मु रेड कलर एरो रे शो करूची एंड मैग्नेटिक फील्ड को मु ग्रीन कलर एरो रे शो करबी ठीक अछि तो एटा होची ग्रीन कलर होची मैग्नेटिक फील्ड आ रेड कलर होची इलेक्ट्रिक फील्ड आमे बे कोन करबा गोटे चार्ज पार्टिकल को आमे प्लेस करबा सपोज एटा होची गोटे चार्ज पार्टिकल द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट रेस्ट
ओके तमें तार इनिशियल स्पीड 0 अच्छी तो जिते जेहेतु तार इनिशियल स्पीड 0 अच्छी तो डेफिनेटली तापर मैग्नेटिक फोर्स इनिशियली किसी आसबनी बट जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तो से चार्ज पार्टिकल ऊपर गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ो आ से इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यू केते हबो q इनटू e आउ सपोज आम एज्यूम करबा जे एटा होची गोटे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो जदि q हेतिबो पॉजिटिव तो ता ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ो दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किंबा जदि आम q को नेगेटिव एज्यूम करबा देन द फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो एबे कोन हबो ना चार्ज पार्टिकल टा रेस्ट थिला जेहेतु तापर गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ुची इट विल बी एक्सेलरेटेड एंड इट विल स्टार्ट मूविंग आइदर along the electric field or opposite electric field ठीक अछि जदि q हेतिबो पॉजिटिव इट विल मूव along the electric field जदि q हेतिबो नेगेटिव इट विल मूव opposite to electric field सो ता माने कोन ता माने होउची से जो चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी एक्वायर करिवो दैट वेलोसिटी विल बी आइदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और opposite to magnetic field काहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल तो जदि चार्ज पार्टिकल मूव करिवो टुवर्ड्स राइट देन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर जदि चार्ज पार्टिकल मूव करिवो टुवर्ड्स लेफ्ट देन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर तो एई केस रे आमे देखिबा जो मैग्नेटिक फोर्स अछि जोटा होची q v b sin थीटा तो एबे कोन हबो ये मैग्नेटिक फोर्स टा 0 हो जिवो काहे ना थीटा आइदर 0 हबो किबा 180 हबो and for that sense the magnetic force will be 0 जेतु मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जिवो ता माने चार्ज पार्टिकल टा केबे भी आउ डिफ्लेक्ट हबोनी से गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करिवो so option A will be the correct one that the charge particle will move in a straight line next question kon dechi na an electron and a proton have equal kinetic energies they enter in a magnetic field perpendicularly then चार ऑप्शन देछि कोन कोन ना both will follow a circular path with same radius ना both will follow helical path both will follow parabolic path all the statements are false तो एबे हमें चेक करिबा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अछंती दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी and they enter in a magnetic field which is perpendicular तो perpendicular केस रे केबे भी helical path हबने so option B is incorrect both will follow a parabolic path एटा भी incorrect they will follow circular path तो एबे option A और option D बचिला तो option A रे कोन देछि ना both will follow circular path with the same radius तो आमे चेक करिवा जे whether the radius will be same or not जेहेतु एठी इक्वल काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करिछि तो आमे जेमति प्रीवियस क्लास डिस्कस करले तो रेडियस रो फॉर्मूला कोन mv/qb अछि किबा आकु मु लिखि परिबी mv होछि मोमेंटम ताकु मु लिखि परिबी 2m * काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय qb ठीक अछि तो जदि हमें ए रेडियस रो फॉर्मूला देखिबा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो वी हैव प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सॉरी इलेक्ट्रॉन बोथ हैव सेम चार्ज तो चार्ज सेम हेगला मैग्नेटिक फील्ड भी सेम अछि दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी बट आम दी मास देखिबा एटा मास टर्म अछि सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज डेफिनेटली much larger than the mass of electron तो जेहेतु मास टा चेंज हबो प्रोटॉन आउ इलेक्ट्रॉन रो तो डेफिनेटली सेमानकर रेडियस भी अलग अलग आसीबो तो एटु लिखा छै जे बोथ विल फॉलो सर्कुलर पाथ दैट इज करेक्ट बट विथ द सेम रेडियस सेटा हबो नाही दे विल हैव डिफरेंट रेडियस सो ऑप्शन ए बी फुल ता माने ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बा false so option D हबो हमर करेक्ट आंसर दे all the statements are false so in this way you can solve this question so next question kon dechi na a proton and an electron both moving with the same velocity v enter into a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of the particle they will move in circular orbit such that which option is correct kon option dechi na their time periods will be same then time period of for proton will be higher the time period of electron will be higher their orbital radii will be same तो जेहेतु एठी टाइम पीरियड आउ रेडियस ऊपर ऑप्शंस देछि हम देखिबो जे टाइम पीरियड फॉर्मूला कोन ना t होछि 2 pi m by qb ठीक अछि तो वी हैव इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव ए प्रोटॉन तो टाइम पीरियड टा डिपेंड करनी ऑन द वेलोसिटी कहा पर डिपेंड करिवो ऑन द मास एंड चार्ज तो चार्ज तो सेम अच्छी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम charge and they are entering into the same magnetic field
तो चार्ज रहा कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड रहा कांस्टेंट है, केवल मास टा चेंज होची. सो डेफिनेटली द मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डेफिनेटली कौन हम द टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन विल बी हायर देन इलेक्ट्रॉन. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. बाकी देयर टाइम पीरियड विल बी सेम, एटा तो भूल हो जिवो. द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हायर, एटा भी भूल हो जिवो. देयर रेडियस विल बी सेम, एटा भी भूल, कहिना रेडियस डिपेंड करछि मास ऊपर. जेतु मास टा अधिक अछि प्रोटॉन रो, तो डेफिनेटली प्रोटॉन विल कवर और प्रोटॉन विल डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ larger radius. So option B will be the correct one. Next question कौन देछि ना, if electron velocity is 2i cap plus 3j cap, तमने एटी velocity कते कहला, velocity कहला 2i cap plus 3j cap and magnetic field कते कहला दा होछि 4k cap. Then its option देछि कोन, speed will change, path will change, both A and B, none of the above. तो स्पीड विल चेंज द इम्पॉसिबल, जेने मैं कहि जे मैग्नेटिक फील्ड केबे भी चार्ज रो स्पीड को चेंज करि परिबो नाही. तो बाकी कौन रहा, बोथ ए एंड बी भी तो हबनी, कहीं जेहेतु ए टा कैंसिल है तो बोथ ए भी हबनी. सो ऑप्शन सी भी कौन कटिगला. एबे देखिबा जो लिखा जे पाथ विल चेंज और नॉट, आम देखिबा एठी जो मैग्नेटिक फोर्स आसीबो, से मैग्नेटिक फोर्स रो वैल्यू केते हबो ना q इनटू v क्रॉस b. तो आम देखिबा एठी v क्रॉस b जीरो होउछ ना जीरो होनी. तो एठी q केते माइनस e, को में लिखिबा एठी माइनस लिखले. तो v केते, v होउछ 2i कैप प्लस 3j कैप, देन आम को क्रॉस करिबा विथ 4k कैप. तो देखो एठी केते हबो ना माइनस e इनटू 2i कैप क्रॉस 4k कैप. तो i क्रॉस k होउछ केते ना माइनस j. तो एटा हिजबो केते 8 इनटू माइनस j कैप. तापरे j क्रॉस k 3 इनटू 4 एटा हबो 12, j क्रॉस k होउछ i, तो एटा हिजबो 12i कैप. तो ये जो फोर्स आसला, द फोर्स इज नॉट जीरो, ता माने चार्ज पार्टिकल ऊपर बा इलेक्ट्रॉन ऊपर गोटे फोर्स पड़िबो. जेहेतु फोर्स पड़िबो तो डेफिनेटली कौन हबो ना द पाथ विल चेंज. स्पीड केबे चेंज हेबनी, बट द चार्ज पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड बिकॉज a magnetic force will act on it. So path will change. Option B will be the correct one. Next question कौन देछि ना, an ion of specific charge 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. Specific charge meaning कौन ना, charge by mass, the ratio of charge to mass, ताको हमें कहिबा specific charge. It enters in a transverse magnetic field. Transverse माने होछि perpendicular of intensity कते कला ना 4 into 10 to the power minus 2 Tesla with velocity of 2 into 10 to the power 5 meter per second. Radius of the circular path will be dash. तो एटी ऑलरेडी क्वेश्चन कोन कहि दिछि, स्पेसिफिक चार्ज कहि दिछि. स्पेसिफिक चार्ज माने कोन, दा होछि q by m, चार्ज by मास रेशियो. सो q by m कते कहला ना 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. ठीक अछि, इट इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट. तापरे b कते कहला, b कहितला 4 into 10 to the power minus 2 टेस्ला. ओके, आउ v केते कहला, द वेलोसिटी इज 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो पचला जे रेडियस केते आसीबो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो रेडियस र फॉर्मूला कोन ना mv डिवाइडेड बाय qb. तो एठी m by q रहउची, आमे q by m केते पाइचे 5 into 10 to the power 7 पाइचे. तो m by q जगह में कोन लिखिबी 1 by 5 into 10 to the power 7. देन v केते, v होची 2 into 10 to the power 5 divided by b, मैग्नेटिक फील्ड केते होची ना 4 into 10 to the power minus 2. तो एटा 2 4 कैंसिल हे जिवो. तो एटा केते हला ना 10 to the power 5 एटा देखो 10 to the power 7 into 10 to the power minus 2, एटा हबो 10 to the 5 हे जिवो. तो एटा कटि गेला 5 into 2 एटा हे जिवो 10. तो 1 by 10 मीटर बा आकदे में सेंटीमीटर कन्वर्ट करबा, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर. ओके, सो 1 by 10 मीटर जा 10 सेंटीमीटर से. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए थी ना, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 to the power minus 12 coulomb is moving along the x direction, माने i कैप रे मूव करची with a velocity of 10 to the power 5 meter per second, experiences a force of 10 to the power minus 10 newton in the y direction due to a magnetic field,
then the minimum magnetic field is dash. तो गोटे चार्ज पार्टिकल अच्छी से चार्ज रो वैल्यू केते कहिला q the value of the charge q केते कहिला q कहिला 10 to the power -12 कूलम कहिला and से मूव करूची x axis रे velocity केते कहिला velocity कहिला 10 to the power 5 meter per second in the I cap direction और फोर्स केते आसुची फोर्स आसुची 10 to the power -10 न्यूटन in the j cap direction तो पता जाए मैग्नेटिक फील्ड कोड आसीबो व्हाट इज द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड केते होबो जते बेले हमें sin थीटा को हमें 1 पके देबा तो एठी हमें कोन देखिबा एठी f हला केते f होची q v क्रॉस b ठीक अछि आउ जेहेतु एठी फोर्स कहि देइची j कैप रे v कहि देइची I कैप रे आउ v रे आमे तेरे b को क्रॉस करूचे तो I कैप देखो v रे I कैप अछि ठीक अछि आउ f रे कोन अछि f रे अछि j कैप अछि तो I क्रॉस डैश विल गिव यू j कैप ना फोर्स कोन फोर्स होची q v क्रॉस b तो वेलोसिटी रे I कैप रहिला मैग्नेटिक फील्ड रे कोन रहिले आमे तेरे I को ते क्रॉस करबा आमे j कैप पाइबा द आंसर इज I क्रॉस माइनस k I cross minus k will be j cap तो एटा सिर्फ कोन ना द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द नेगेटिव z डायरेक्शन बाकी से मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू केते आसीबो ना जेहेतु एठी कोन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो एठी हमें लिखि देबा फोर्स रो वैल्यू केते हबो q v b हबो f इक्वल टू q v b तो f केते कहि दिछि 10 टू द पावर -10 q केते कहिला q होची 10 टू द पावर -12 v केते कहिला 10 टू द पावर 5 इनटू b हमकु b बाहर करिवार अछि तो 10 टू द पावर -12 इनटू 10 टू द 5 एटा हेजिबो 10 टू द पावर -7 सो 10 टू द पावर -7 इनटू b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 तो b केते हेजिबो b हेजिबो 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7 दैट इक्वल टू 10 टू द पावर -3 so the magnetic field will be 10 to the power -3 Tesla and that should be in the negative z direction okay तो एठी जेतु नेगेटिव विषय किछि लेखिनी बट ऑप्शन डी रे 10 टू द पावर -3 टेस्ला अछि सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना ए ड्यूटेरन of kinetic energy 50 kilo electron volt is describing 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field B. The kinetic energy of the proton that describes a circular path of radius 0.5 meter in the same plane with the same magnetic field will be dash. So एठी radius आउ kinetic energy भितर गोटे फॉर्मूला हम देखै पड़िबो हमें जानि जे रेडियस केते रेडियस होची केते ना mv by qb बट आमे लिखिबा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेटा केते हेजिबो ना 2m काइनेटिक एनर्जी र स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय qb ओके सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरन केते कहला एटा होची 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये जो क्वेश्चन रे दुईटा चार्ज पार्टिकल कहिछि गोटला ड्यूटेरन आ गोटे होची प्रोटॉन ओके एंड ड्यूटेरन रो केते एनर्जी अछि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड से केते रेडियस रो सर्कुलर पाथ कवर करूछि ना 0.5 मीटर रो से पचाला जे आमे से सेम मैग्नेटिक फील्ड रे गोटे प्रोटॉन को एंट्री करबा and the proton will also describe a circular orbit of the same radius 0.5 meter in the same magnetic field so what should be the kinetic energy of the proton तो क्वेश्चन यह देला जे the radius of proton should be equal to the radius of deuteron okay and what should be the kinetic energy of proton तो हम देखिबा एठी जे rp आउ rd रो हमें एक्सप्रेशन लिखिबा इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला तो rp केते हिजबो स्क्वायर रूट ऑफ 2 into mass of proton into ekp divided by
चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड आउ आर डी केते हबो माने द रेडियस ऑफ ड्यूटेरन एटा केते हबो 2 इनटू मास ऑफ ड्यूटेरन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरन तार स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ माने चार्ज ऑफ ड्यूटेरन इनटू मैग्नेटिक फील्ड तो एबे हमें कौन करबा एबे हमें आरपी आउ आरटी को इक्वल करबा बिकॉज़ क्वेश्चन कोन देछि ना प्रोटॉन एंड ड्यूटेरन विल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस तो हम लिखि परिबा जे 2mp ekp square root is equal divided by qp into b is equal to 2md ekd square root divided by qd into magnetic field okay तो ये b b कैंसिल हो जिवो अगेन 2 2 b कैंसिल हो जिवो तो देखिबा ये जो mp अछि mp into ekp square root divided by qp रहिला on the left side. On the right side we have mass of deuterium, so remember that the mass of deuterium is twice of the mass of proton, okay, square root lemthia, and the charge of deuterium is same as charge of proton. तो ये qp qp कटिजिवो qd जहा qp से they have the same charge ये mp mp कटिगला तो आमको देखिबार अछि जे आमे कोन पहिले एठी ना ekp square root is equal to 2 into ekd square root. So if you square both side आमे कोन पाइबा ना ekp should be equal to twice of ekd. तमने deuterium रो जहा थला kinetic energy protons should have twice the kinetic energy in order to describe a circular path of the same radius. तो जेहेतु deuterium रो kinetic energy केते कहला 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहितला तो प्रोटॉन रो केते एनर्जी एटा हेबो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन देन 100 अच्छी ऑप्शन डी रे सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन now look at the next question kon dechi na a proton with a velocity v enters a region of uniform magnetic induction b with a velocity perpendicular to magnetic field and describe a circular path of radius r. If alpha particle enters in the region with the same velocity v, then it will describe a circle of radius dash. So again, आमे compare करिबा between proton and alpha particle. So proton अछि alpha particle अछि तो proton रो radius केते हबो mass of proton into velocity divided by charge of proton into magnetic field. तो क्वेश्चन कोन देछि ना प्रोटॉन रो जहा थला वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल से सेम वेलोसिटी एंट्री करिवो इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड तो जदि r होची रेडियस ऑफ प्रोटॉन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल तो r अल्फा केते हबो मास ऑफ अल्फा इनटू v डिवाइडेड बाय q ऑफ अल्फा इनटू b तो हमें जानि छे जे अल्फा पार्टिकल रो मास केते अल्फा पार्टिकल मास होची 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन and charge केते 2 times the charge of proton तो एटा 2 4 कटले ऊपर 2 हे गेला त हमें कोन पहिले एठी ना एटा हे जिवो केते ना r alpha will be equal to 2 into mpv divided by qpb ता माने हम या पहिले जे अल्फा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करिवो द तार रेडियस केते हे जिवो ता ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन तो जेहेतु प्रोटॉन रो रेडियस r दिया हेची सो अल्फा पार्टिकल जो सर्कल कवर करिवो its radius will be 2r so option c is the correct one. Next question kon dechi na a 2 mega electron volt proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 tesla. The force on the proton is dash. तो एठी kinetic energy कहि देछि देखो 2 mev माने कोइडा होछि kinetic energy of the proton ओके आ मैग्नेटिक फील्ड भी कहि देछि 2.5 टेस्ला कहि देछि तो पछले व्हाट इज द फोर्स ऑन द प्रोटॉन आ कोन देछि ना द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो डेफिनेटली फोर्स केते हबो फोर्स हे जिवो qv भी हे जिवो f इक्वल टू q into v into b बाकी चार्ज तो जणा अछि प्रोटॉन रो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कहि देछि बाकी हम बाहर करे व्हाट इज द वेलोसिटी तो जेहेतु काइनेटिक एनर्जी केते कहितला 2 mega electron volt I think the kinetic energy is given as 2 MeV yes तो 2 mega electron volt
तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आमे जूल करबा एटा केते हे जिवो मन रखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जे केते ना 1.6 into 10 to the power minus 13 जूल ओके तो आमे काइनेटिक एनर्जी पाई गले एते खला जोरा केते एटा हे जिवो 3.2 into 10 to the power minus 13 जूल हे गला आमे जानि जे काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन ना हाफ m v स्क्वायर सो प्रोटॉन रो मास इनटू तार माने हाफ इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू तार स्पीड रो स्क्वायर एटा केते हबो एटा हबो 3.2 into 10 to the power minus 13 जूल हमको एठू बाहर करे छोटे वेलोसिटी सो v स्क्वायर केते हबो v स्क्वायर हे जबो 2 into 3.2 into 10 to the power minus 13 divided by mass तो प्रोटॉन मास केते ना मन रखो द मास ऑफ प्रोटॉन केते ता 1.672 into 10 to the power minus 27 kg बट एठी मु जेहेतु टी ऊपर 3.2 अछि तो फॉर मैथमेटिकल सिंपलिसिटी मु कोन करबी ना एठी मास ऑफ प्रोटॉन को मु लिखिबी 1.6 into 10 to the power minus 27 so that एटा इजीली कटि जिवो ओके एंड आमे आंसर पाई परिबा बट हमर जहा भी आंसर आसीबो दैट विल बी क्लोज टू द ऑप्शन तो ये v स्क्वायर एतिक हला तो खाली v केते हबो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी तो एटा केते हला ना देखो 2 to 4 हे गला इनटू 10 टू द पावर माइनस 13 थला एठी एटा ऊपर को देखो प्लस 27 हे जिवो तो 10 टू द 14 हे जिवो तार स्क्वायर रूट नबा एटा केते हबो एटा हे जिवो 2 into 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड हे गला वेलोसिटी टा तो फोर्स केते हबो q v तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम v केते पाइले 2 into 10 to the power 7 आ मैग्नेटिक फील्ड केते कहला 2.5 टेस्ला कहला तो एठी देखो 2 into 2.5 एटा 5 ही जिवो then 5 into 1.6 will be 8 so 8 into 10 to the power minus 19 plus 7 minus 12 ही जिवो so 8 into 10 to the power minus 12 newton so if you look at the options then option D is the closest one jora achi 7.8 our answer 8 bahala because we have taken the mass of proton to be 1.6 into 10 to the power minus 27 kg so nearest value is option D so option D is the correct option so now look at the next question question kon dechi na a particle of charge per unit mass alpha ta mane q by m charge per unit mass eta hoche alpha कहला is released from origin with a velocity v केते कहला v not I cap in a uniform magnetic field b equal to minus b not k cap ta mane magnetic field अछि along the negative z axis if the particle passes through 0 y0 then y is equal to dash तो ए जो क्वेश्चन ताको मैं यदि फिगर ड्रा करबा सेटा केमथि हबो ना देखो एमती अछि सपोज एटा अछि xy plane suppose this is the xy plane the x axis this is the y axis तो एठी वेलोसिटी केते कहला वेलोसिटी कहला v नॉट I cap आउ मैग्नेटिक फील्ड को पटे अछि एटा अछि माइनस b नॉट k cap ओके ता माने एटा होची पॉजिटिव z एक्सिस एटा हबो नेगेटिव z एक्सिस तो ए पटे अछि मैग्नेटिक फील्ड अछि तो चार्ज पार्टिकल एंटर करूची एट द ओरिजिन जोटा होची ए पॉइंट एंड इट पासेस थ्रू 0 y0 ता माने देखो हमें दिया पर फोर्स बाहर करिबा फोर्स फॉर्मूला कोन होबा ना q v क्रॉस b ठीक अछि तो q into v केते v होची v नॉट I cap क्रॉस b केते b होची b नॉट माइनस k cap तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो q into v नॉट b नॉट I क्रॉस माइनस k I क्रॉस माइनस k हबो j cap ओके I क्रॉस माइनस k will be j cap त माने चार्ज पार्टिकल टा along the y axis गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो तो डेफिनेटली से कोन हबो एम्ति गोटे सर्कुलर पाथ कवर करिवो आ ए पॉइंट रे बाहर जिवो ठीक अछि एम बाहर जिवो तो ए जो पॉइंट रे सी आसे कि इंटरसेक्ट कला तक में कहिबा 0 y0 बिकॉज़ द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस ओके तो हमको देखिबार अछि से y रे वैल्यू केते तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ आउ डायमीटर ऑफ फॉर्मूला कोन ना हमें देखि जे r केते r होची mv/qb तो डायमीटर केते हे जिवो 2r हे जिवो तो एटा हे जिवो केते 2mv/qb तो एठी ऑलरेडी q by m को अल्फा कहि देछि तो m by q केते जिवो 1 by अल्फा हे जिवो
तो 2 into ऊपर मु v लिखली एठी जो m by q अछि ताको मु लिखि दोची 1 by alpha एंड तळे एठी b अछि केते b नॉट ओके सो हां v होची v नॉट सो 2 v नॉट by alpha b नॉट इज द आंसर तो एटा कोन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन आ देखो एठी भी कोन देछि नै एठी माइनस 2 v नॉट by b नॉट अल्फा देछि बट हमर आंसर आसीबो कोन हमर आंसर आसीबो प्लस 2 v नॉट by alpha b नॉट बिकॉज़ the force is along the positive y axis ओके तो जेहेतु एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज देछि तो एम्ति ऊपर को जीवो ओके एंड पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट रे सीधा को इंटरसेक्ट करिवो So, आज last question कौन रही ना a charged particle enters a uniform magnetic field with velocity vector at an angle of 45 degree with the magnetic field. The pitch of the helical path followed by the particle is p. The radius of the helix will be dash. तो आम जाने जदि velocity vector आउ magnetic field vector भितर किसी अलग एंगल थिबो तो से केस रे कोन हबो ना चार्ज पार्टिकल टा गोटे हेलिकल पाथ कवर करिवो आ से हेलिकल पाथ रो जो पिच थाए पिच रो वैल्यू केते 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय qb ओके एंड रेडियस रो फॉर्मूला कोन ना m v sin थीटा डिवाइडेड बाय qb ठीक अछि सो जदि परपेंडिकुलर एंट्री करूचे तो sin 91 हिजबो तो r mv by qb हिजबो बट जदि किछ अलग एंगल रे एंट्री करूची तो रेडियस रा फॉर्मूला कोन ना mv sin थीटा by qb तो आमे देखिबा जे हाउ द रेडियस ऑफ हेलिक्स इज रिलेटेड टू द पिच तो आमे देखिबा जदि मे एडी r by p बाहर करबा रेशियो ऑफ रेडियस टू द पिच तो एटा कते हिजबो r तेरे में लिखि परिबी mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb एंड इट जो 1 by p अछि तो सेटा कते हिजबो qb डिवाइडेड बाय 2 pi m v cos थीटा ओके तो एटी qb कैंसिल हिजबो mv mv कैंसिल हैला तो r by p आमे केते पाइले sin थीटा by cos थीटा जोरा होची tan थीटा इनटू एठी डिवाइडेड बाय 2 पाई रहला एठी डिवाइडेड बाय 2 पाई थीटा केते 45 कहि दिछि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan 45 डिवाइडेड बाय 2 पाई tan 45 इज 1 सो 1 by 2 पाई तो r by p हम केते पहले 1 by 2 पाई पाइले तो r केते हिजबो r हिजबो p by 2 पाई r will be p by 2 पाई so option c will be the correct one so students आज वीडियो रे आमे 15 क्वेश्चन सॉल्व कले some of the selected questions from the topic motion of a charged particle inside a magnetic field and a type of बहुत गुड़े questions अच्छी and I think all of you have got some kind of idea how to solve this type of questions how to approach to this type of questions so you can practice many questions from different type of sources so जदि वीडियो भल लागिछि then you can share the video with your friends so that everyone will be benefited again we'll meet in the next video so till then have a nice day and bye bye